Good morning, student. Today I am teaching you business study for class 11. Today's topic is telecommunication services. So telecom services involves use of electronic device for exchange of information. It provides faster, cheaper and more reliable means of communication. Telecom services are widely used by business organizations. Efficient and advanced telecommunication infrastructure facilitates rapid economic and social development of the country. So telecommunication service एक electronically we can transfer our information, we can exchange our information and it is very easy, very faster, very cheaper and reliable also. ये बहुत reliable भी होता है, ठीक है? Fine. नाउ टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्यूलर मोबाइल सर्विस एंड सेकेंड फिक्स लाइन सर्विस, अनदर वन केबल सर्विस, देन वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सर्विस and then direct to home services. So first of all I'll explain you about the cellular mobile services. So these are used to provide voice and non-voice message, data services and PCO services by utilizing any type of network equipments within the service area. तो cellular phone हम कह सकते हैं कि it is just like a PCO, fine, in which you can transfer your message. It is, we can say, provide voice and non-voice both. Okay, they can also provide direct interconnectivity with the other types of telecom services. इसमें हम एक टेलीकॉम से दूसरे टेलीकॉम को कनेक्ट कर सकते हैं. Some of the main operators providing cellular phone services in India are Airtel, Vodafone, Idea and Reliance. Fine. तो these are the cellular mobile phones जो कि आपको voice और non voice मैसेज सेंड करने में हेल्प करते हैं. Now next we will talk about the fixed line services. So earlier people used to send the messages or get the messages in a voice form through the fixed line services. Fine. Now the technique has changed. Cellular mobile services has fruitfully works. It helps to the people. Directly we can share our views and take the views voice as well as in non-voice way. Fine. So fixed line services, it provides voice and non-voice message and data services to establish linkage from long distance traffic. तो जो फिक्स लाइन सर्विसेज होती हैं ये ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें हम अपनी आवाज़ और मैसेज दोनों ही इंफॉर्मेशन के तहत अगर हमें बहुत दूर तक अगर अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो वी कैन इजीली सेंड द मैसेज. ओके, द वेरियस एरियाज आर कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स to provide network for sending and receiving phone calls. So in fixed line services through the fiber optic cable एक लाइन सी एक तार सा जॉइंट होता था, ठीक है, उसमें फैब्रिक वायर यूज्ड, उस वायर की हेल्प से नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता था और कोई भी फोन कॉल्स से आपको एनी information if you want to send, if you want to receive, you easily gets. So it also provides interconnectivity with other types of telecom services also. So ये एक ऐसी सर्विस थी जो कि जो अदर जो हमारी टेलीकॉम सर्विसेज हैं लाइक द सेलुलर मोबाइल फ़ोन एंड केबल सर्विसेज, तो इनकी ही तरह आपका मैसेज कन्वे करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं और मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है. Then next third one, that is cable services. Okay, तो पहले के टाइम पे अगर हम देखें each and every people have their landline phones in their home. हाँ, सबके घर में तो नहीं होता था बट मोहल्ले में अगर एक या दो होते थे तो सभी लोगों के फ़ोन उसी पर्टिकुलर फ़ोन में आते थे, तो वही नंबर ऑल ओवर उस लोकल एरियाज़ में चलता था, ठीक है.
फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट सर्विस थ्रू द टेलीकॉम सर्विस इज केबल सर्विसेज. सो केबल सर्विसेज it is one way transmission of entertainment related services to the subscriber within a licensed area of operation. तो केबल सर्विस में क्या है, ये अपने आप में एक वन वे ट्रांसमिशन है जिसमें हम अपनी बात सिर्फ एक ही साइड से कहते हैं. ये इसमें आपका कोई मैसेज सेंड रिसीव नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ सेंड किया जाता है और ये आपको एंटरटेनमेंट करता है रिलेटेड विद द सर्विस. ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑपरेटर को एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता था. ठीक है, एरिया दिया जाता है, उसको लाइसेंस होता है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में अपना केबल के थ्रू एंटरटेनमेंट लोगों का they'll connect the wires. Okay, so in future cable network services are expected to become two way. तो अब अगर हम देखें तो जो हमारा केबल नेटवर्क सर्विस है वो भी आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि वो भी क्या हो, टू वेज हो जाए, कि जिसमें आप मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं एंड यू सेंड ऑल्सो योर क्वेरीज. ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ वन इज वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सर्विसेज, जिसको हम VSAT भी कहते हैं. सो VSAT का फुल फॉर्म है ये Very Small Aperture Terminal Services. So, is a two-way satellite-based communication service which is commonly used to transmit narrowband data or broadband data. ठीक है, तो ये एक ऐसी सर्विस है जिससे हम सैटेलाइट की हेल्प से अपने मैसेज को कन्वे करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द सर्विस विच प्रोवाइड द सर्विस थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट योर व्यूज़ टू द थर्ड पर्सन. ठीक है, इसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी बॉर्डर होता है. इट ऑफर अ हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन. इसमें जो आप कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, रिलायबल है. सॉल्यूशन दैट इज़ बेटर देन लैंड बेस्ड सर्विस. तो ये लैंड बेस्ड सर्विस से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि लैंडलाइन का ये है कि कहीं पे लाइन का दिक्कत होगी, बारिश हो गई, लाइन टूट गया, लीकेज हो रहा है, तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं होती है, मैसेज क्लियरली आपको आप तक नहीं पहुंचता है. बट इन दिस इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो it can also be used to provide innovative applications such as tel machines, newspaper online and market rates etc. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमें वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सर्विस से मिलते हैं. जैसे हम इसमें रेडियोज़ भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो कि easily you get the message, easily you get the knowledge, you raise your knowledge. ठीक है. ओके, देन नेक्स्ट डायरेक्ट टू होम, जिसको हम DTH सर्विस कहते हैं. इट इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस विच इज़ रिसीव्ड थ्रू अ सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल डिश. तो डायरेक्ट टू होम DTH सर्विस है जो कि it is earlier you need a small dish called antenna and a set-top box. आपको set-top box चाहिए. So DTH service provider offers various channels. तो जो हमारा DTH सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो उस पर्टिकुलर एरिया का ऑपरेटर है, he'll provide you DTH particular box and the various channels depending on the plan selected by the subscriber. और जो हम सब्सक्राइबर हैं, हमें according to our need we will subscribe the channels. ठीक है, जितने भी उसमें चैनल्स हैं उसमें से जो हमको पसंद है वो हम सब्सक्राइब करते हैं, उसी का हम पैसा देते हैं. सो DTH सर्विस relieves the subscriber of problems faced under cable network services. ठीक है, तो जो DTH है ये बहुत ही ज़्यादा रिलीफ है सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि जो केबल नेटवर्क सर्विसेज होती थी, जो लैंडलाइन के थ्रू, तार्स के थ्रू आपका टीवी कनेक्ट है, केबल का प्रॉब्लम होता था कभी, वही वाला प्रॉब्लम है जो सेम एज फिक्स लाइन सर्विसेज में है कि कहीं बारिश आ गई, कहीं तार टूट गई, लीकेज हो गया. तो दिस प्रॉब्लम फेस बाय द सब्सक्राइबर ऑन दैट टाइम. फाइन. नाउ द टू मेन पोस्टल सर्विसेज मैंने आपको अपना प्रीवियस वीडियो में जो समझाए थे, जिसमें आपका पोस्टल सेविंग स्कीम्स में मैंने आपको बताई थी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आई विल एक्सप्लेन, एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑल्सो आई टॉट.
किसान विकास पत्र भी मैंने आपको समझा दिया था. नाउ in this video still two saving schemes were left. That is first public provident fund. It is one of the postal services. So in this, individual who are resident of India are eligible to open the account of under the PPF. ये पोस्ट ऑफिस में चलाई जाती है. It may also be opened under the name of the minor. किसी माइनर के नेम से कोई लीगल गार्जियन के थ्रू भी ये खोली जा सकती है. इन्वेस्टमेंट इन PPF आर रिकरिंग इन नेचर एंड रन ओवर 15 ईयर्स पीरियड. इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 15 ईयर तक का होता है, जिसको हम फुल फाइनेंशियल ईयर्स कहते हैं, जिसमें आपने लगातार पैसा सबमिट करना है. इसका जो स्टार्टिंग होता है, एनुअल कंट्रीब्यूशन आर मैंडेटरी. इसका हर मंथ में आपको अमाउंट पे करना है. ठीक है. इट इज़ मिनिमम स्टार्टेड विद 500 एंड मैक्सिमम इसका 1 लाख तक पे कर सकते हैं. फाइन. The subscription under PPF shall bear interest at the rate of 8.72 per annum. इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 8.70 per annum आप पे करते हैं. इन्वेस्टमेंट इन PPF up to 1 lakh per annum qualifies for income tax rebate under section 80C of Income Tax Act. तो इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत आपका जो भी वट एवर द अमाउंट यू विल गेट आफ्टर योर 15 ईयर्स, यू विल नॉट बी गेट एनी टाइप ऑफ टैक्स और you will not be pay means it is a risk free and tax free service. Okay, so this is public provident fund which is a postal service. Then next, monthly income scheme. So in post office, monthly income schemes provides for monthly payment of interest income to investor. यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मंथली इनकम की जो स्कीम्स होती हैं वो प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. मंथली पेमेंट आप पे करते हैं, उस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है. एनी इंडिविजुअल कैन ओपन द अकाउंट. इसको कोई भी इंडिविजुअल खोल सकता है. अगर वो सिंगल है, सिंगल भी, और जॉइंट है तो जॉइंट में भी वो खोल सकता है. द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1500 फॉर द बोथ सिंगल एंड द जॉइंट अकाउंट. दोनों के लिए मिनिमम जो अमाउंट है वो 1500 है, जो इनिशियल आप अमाउंट पे करेंगे. एंड द मैक्सिमम फॉर द सिंगल इज 4.5 लाख एंड फॉर द जॉइंट 9 लाख इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है. और इसका जो ड्यूरेशन है ऑफ MIS इज 5 ईयर्स. 5 साल तक ये चलती है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू MIS इज 8.40. इसका भी जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.40 है. And it is meant for those investors who want to invest a some amount initial and earn interest on a monthly basis for their livelihood. तो ये उन पीपल्स के लिए बना है जो मंथली बेसिस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट सबमिट करते हैं और आने वाले समय में लंबे समय के लिए अपने लाइवलीहुड के लिए वो कुछ पैसा स्टोर करना चाहते हैं. MIS is meant to provide a source of regular income on a long term basis. ये एक रेगुलर इनकम आप जब सबमिट करें तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आपको इनकम मिलता है. सो दिस इज द स्कीम इज मोर